Praise the Lord. Grace and peace be upon you, dear family. Today we welcome you to hosting the Ark Day 70. Our theme is the location of the Ark. Christ is in the midst of His people. प्रिय परिवार, आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क के 17वें दिन में आपका स्वागत है। आज का विषय है वाचा के संदूक का स्थान, अपनी प्रजा के बीच मसीह। The position of the Ark was never random. God Himself determined where it should be placed. According to Numbers 2:17, the Ark remained in the very center of the camp of Israel. वाचा के संदूक का स्थान कभी भी संयोग से नहीं था। स्वयं परमेश्वर ने तय किया कि उसे कहाँ रखा जाए। गिनती 2:17 के अनुसार वाचा का संदूक इस्राएल की पूरी छावनी के बिल्कुल मध्य में रखा गया था। And this teaches us that God never intended to be a visitor among His people. He desires to be the very center of their lives. Everything in Israel revolved around the Ark. ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच केवल अतिथि बनकर नहीं रहना चाहता, वो हमारे बीच का केंद्र बनना चाहता है। जिस प्रकार इस्राएल का पूरा जीवन वाचा के संदूक के चारों ओर केंद्रित था, उसी प्रकार हमारा जीवन भी मसीह के चारों ओर होना चाहिए। In Revelation 1:13, John saw Jesus walking in the midst of the seven lampstands. Christ was not outside the church, He was in the midst of His people. प्रकाशित वाक्य 1:13 में यूहन्ना ने प्रभु यीशु को 7 दीप वृक्षों के बीच में चलते हुए देखा। इसका अर्थ है कि मसीह अपनी कलीसिया से दूर नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच में उपस्थित है। Jesus also said in Matthew 18:20, where 2 or 3 gathers together in my name, I am there in the midst of them. प्रभु यीशु ने मत्ती 18:20 में कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। So the strength of the church is not found in buildings, numbers, or programs. The strength of the church is found in the presence of Christ Jesus. तो कलीसिया की सामर्थ्य उसकी इमारत, उसकी संख्या या उसके कार्यक्रमों में नहीं है। कलीसिया की वास्तविक सामर्थ्य प्रभु यीशु की उपस्थिति में है। Before Israel crossed the river Jordan, the ark went about 2,000 cubits ahead of the people. The ark entered the water first. जब इस्राएल यरदन नदी पार करने वाला था, तब वाचा का संदूक लोगों से लगभग 2000 हाथ आगे चल रहा था। सबसे पहले संदूक ही यरदन के जल में उतरा। And this points us to Jesus Christ. Nearly 2,000 years ago, He went before us through His death, burial, resurrection and ascension. So He became our forerunner. ये प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। लगभग 2000 वर्ष पहले उन्होंने हमारे लिए मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का मार्ग पूरा किया। वे हमारे अग्रदूत बन गए। So Jesus did not simply show us the way. According to John 14:6, He said, I am the way, the truth and the life. He became the way. तो प्रभु यीशु ने केवल मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Israel was never commanded to lead the ark. They were instructed to follow it. Jesus said, my sheep hears my voice and they follow me. इस्राएल को कभी भी वाचा के संदूक का नेतृत्व करने के लिए नहीं कहा गया, उन्हें केवल उसका अनुसरण करने की आज्ञा दी गई। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। Whenever Israel followed the ark, rivers opened, walls fell, victories came, and God's presence remained with them. और जब भी इस्राएल ने वाचा के संदूक का अनुसरण किया, तब तक नदियां फट गई, दीवारें गिर गई, विजय मिली और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ बनी रही। Today, many things compete for the center of our lives. But according to Colossians 1:18, Christ must have first place in everything. आज हमारे जीवन में बहुत सी बातें प्रथम स्थान लेना चाहती हैं, लेकिन कोलोसियों 1:18 हमें सिखाता है कि हर बात में मसीह ही प्रथम स्थान रखे। The greatest blessing is not merely to receive gift from God. The greatest blessing is to live continuously in His presence. सबसे बड़ी आशीष केवल परमेश्वर के वरदान प्राप्त करना नहीं है, सबसे बड़ी आशीष है उसकी उपस्थिति में निरंतर जीवन बिताना। Dear precious family, let us keep Christ at the center of our lives, our homes and our churches. He still walks in the midst of His people, goes before us and makes way where there seems to be no way. प्रिय परिवार, आइए हम ये निश्चय करें कि प्रभु यीशु हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे कलीसिया का केंद्र बने रहे। वो आज भी अपने लोगों के बीच में चलते हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं, और जहाँ कोई मार्ग दिखाई नहीं देता
वहाँ भी हमारे लिए मार्ग बना देते हैं। God bless all of you. प्रभु आप सभी को आशीष दे।